हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में ट्रेपेजियम किया था, उसमें एक स्पेशल केस मैंने आपको करवाया था, दैट वाज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. After that we had taken area of trapezium का formula. Okay, then we had gone for parallelogram. So I'll brief you. Parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary. So these are the properties. Okay. Next, what can I say now? Even parallelogram की एक और प्रॉपर्टी होती है, diagonals bisect each other in case of a parallelogram. Yes, ठीक है. Next, area of a parallelogram का हमने फॉर्मूला देखा था, that was base into height. We have proved it. Very important. Now one more important concept we'll be discussing, जो कि बहुत important है ओलंपियाड्स के हिसाब से. For example, let me take down a question for you. A parallelogram is given to you and the perpendicular is given. Let's say ABCD is a parallelogram and AM is a perpendicular of length 10 centimeters. AB is a side of, let's say, 12 centimeters. Next, if I drop a perpendicular from A onto BC, and let's that point be N, and I say that AD is equals to, let's say, 6 centimeter. Okay, so these are the things which are given to you in the question. Find AN. क्या question clear है सबको? Yes, sir. Is the question clear? Parallelogram is there in which you have one side and height, another side and a height. So you need to find out length of another height. Give a try. सारे बच्चों को वीडियो ऑन ही रखना है क्लास में. वैन्या का वीडियो भी ऑफ है. वैन्या, कशिश का वीडियो भी ऑफ है. यस, चलिए. सो इफ टू फाइंड आउट AN, अब देखते हैं कैसे ढूंढेंगे AN को. तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सी व्हाट वी नो, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज base into height. Now when I say height,
actually the meaning of this height is nothing but 10 perpendicular on the given base. ठीक है ना, हाइट का ये मतलब नहीं है आप अपनी मर्जी का परपेंडिकुलर ले लोगे, आपको हाइट वही लेनी है, परपेंडिकुलर वही लेना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बेस गिवन हो. ठीक है ना. सो इफ आई एम सेइंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आई हैव टू टेक बेस. लेट्स से बेस इज आई एम टेकिंग CD. तो CD के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है? AN. So the height has to be AM. Height cannot be AN. Okay. Now I know that in a parallelogram opposite sides are equal. So I can say that AB is equal to CD is equal to 12. क्या मैं बोल सकता हूँ? मुझे क्या पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. Sir, AN is 20 centimeter. Yes, correct. Very good ना. तो AB is equal to CD is equal to 12 आ जाएगा. तो 12 हो जाएगा. AM मुझे पता है कितना है, AM 10 है. तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Now I can again write area of parallelogram with another formula in which I'll be taking the different base now. Now my base becomes BC. तो अगर मैंने BC को बेस लिया है तो मुझे obviously BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसी को हाइट लेना है. So what is the height now? AN. And I know that BC will be equal to AD because in a case of parallelogram opposite sides are equal. तो AD मेरे लिए 6 हो जाएगा. तो इस केसेस में ये क्या हो जाएगा? 6 into AN. That's the area of parallelogram. Now I have found out area of parallelogram with the different formula already. So I'll write it like this. Area of parallelogram मैं already निकाल चुका हूँ. तो वो कितना हो जाएगा? 120 is equals to 6 into AN. तो AN कितना हो जाएगा आपके पास? 20 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? AN कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. कौन ठीक है? उत्तर समझ आ गया? यस सर. चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं. सो दिस वाज पैरेललोग्राम फॉर यू. फ्यू क्वेश्चंस ऑन पैरेललोग्राम वी हैड डन इन द लास्ट क्लास, है ना. नेक्स्ट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रोम्बस. रोम्बस की बात करते हैं. इफ adjacent sides of a parallelogram are equal, then it is a rhombus. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम बोलना चाह रहे हैं ठीक है. इन इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस. इसका मतलब क्या है कि मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ. ठीक है ना. लेट्स अस गिव नेम ऑफ पैरेललोग्राम एज ABCD. In this case, if I have that construction such that AB equals to BC, है ना. मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया? एक पैरेललोग्राम में एक चीज और ऐड कर दी, AB इक्वल टू BC कर दिया. तो इसकी वजह से क्या हो गया? AB BC के बराबर है. अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? AB CD के बराबर है और BC AD के बराबर है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल फोर साइड्स विल बिकम इक्वल? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की क्या हो गई? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. All four sides are equal. Next what I'm gonna do is diagonals को मैं join करता हूँ. Okay. अब मुझे क्या पता है? Diagonals bisecting होते हैं. ठीक है ना. डैश बहुत ध्यान से देखना आप. मैंने एक डायगोनल पे 2 डैश कर दिए ताकि दोनों को इक्वल प्रूफ कर बोल दूं मैं, और एक को 3 डैश कर दिया, मतलब तीनों इक्वल है. ठीक है ना. अब इसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. एक और चीज लिख दो. In a rhombus, all the properties of
all the properties of a parallelogram are valid. आर वैलिड बोलो या आर एप्लीकेबल बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना, आर एप्लीकेबल, ठीक है, आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, वो एक पैरेललोग्राम होता है, इसके लिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। नेक्स्ट व्हाट कैन आई से, और क्या मैं बोल सकता हूँ। अब देखो, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है ना। लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप। क्या मैं बोल सकता हूँ AD मेरा AB के बराबर है, as all sides are equal in a rhombus? Next I will say that OD equal to OB. क्यों? Diagonals bisect in a parallelogram. अच्छा, अगर आप देखो OA दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, OA दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ OA will be equal to OA? That's a common side which both of them share. So now I can say that by SSS, side side side, कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा आप देखेंगे, मैंने आपको बताया है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे देखेंगे, देखो इसमें AD दिया है, इसमें AB दिया है, इसमें OA दिया है, इसमें OA दिया है, तो यहाँ से यहाँ जब मैंने ट्रांजिशन किया तो A कांस्टेंट रहा, चेंज क्या हुआ, D O में बदल गया, इसका मतलब B O में बदल जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ A का कॉरेस्पॉन्डेंस A के साथ ही होगा, O का कॉरेस्पॉन्डेंस O के साथ होगा, और D का कॉरेस्पॉन्डेंस B के साथ होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। क्या ये समझ आ रहा है आपको? Yes. ये सारा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई एग्जामिनेशन में पूछने वाले नहीं है। दिस इज फॉर यू अंडरस्टैंड एक्चुअली ये सब चीजें होती कैसे है। अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB। ये जो AOD है और जो AOB है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो CPCT से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल AOD, कैन आई से दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ AOD और AOB इक्वल है? अब ध्यान से देखो, आपने बोला AOD एंगल सर AOB एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं ये एंगल X है, तो ये वाला एंगल भी X होगा, है ना। अब एक और चीज बताओ, ये क्या मैं बोल सकता हूँ BD तो एक स्ट्रेट लाइन है, 90 तो एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180। 180 degree. अब ये एक X है, दूसरा भी X है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान समझना बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में एक ऐसा डायगोनल बनाया हुआ था, बोला ये भी X है, ये भी X है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा डायगोनल था, ऐसा फिगर है, आपने बोला ये भी X है, ये भी X है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो 180 बनाता है, तो मैं बोल सकता हूँ 2x इज 180 डिग्रीज, सो देयरफॉर आई कैन से दैट x इज 90 डिग्रीज। इसका मतलब है इंडिविजुअली ये भी 90 होगा और वो भी 90 होगा, ठीक है ना। लिख लो, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ ताकि आप पूरा लिख पाओ एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से रोम्बस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ गई, विच इज डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। आप ऐसा भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे दो पार्ट में कट करें। लिख लो, ठीक है ना। तो मैं एक पॉइंट थर्ड ऐड कर देता हूँ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री, ठीक है, लिख लो। Sir, I have written diagonals are perpendicular bisector यस in दैट्स rhombus. आल्सो करेक्ट, या दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी से आपको यूज टू होना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे कट करेगा और दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, ठीक है ना। लिखो, तो आप चाहो तो फोर्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हो, वन डायगोनल is perpendicular bisector of the other, है रोम्बस के केसेस में। इज इट क्लियर?
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रोम्बस बनाते हैं जिसके अंदर हम सबने सारी प्रॉपर्टीज लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, हम एक रोम्बस बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे एंगल्स को नाम देने की कोशिश करेंगे। देखो, लेट्स ट्राई टू मार्क ऑल द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। सो इफ आई हैव ड्रॉन अ रोम्बस, ठीक है ना, एक जनरल रोम्बस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई इसकी खासियत नहीं है, सिर्फ एक रोम्बस हमें बता दिया गया है। तो हमें क्या क्या पता है, ये 90 होगा, ये 90, ये 90, ये 90। यस। नेक्स्ट, अगर मैं ये एंगल एक्स बोलता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल एक्स होगा? यस। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैंने ये एक्स बोला तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 90 माइनस एक्स होगा? यस। अच्छा, अब मुझे बहुत ध्यान से बताना आप, ये 90 माइनस एक्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 माइनस एक्स होगा? यस। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इफ आई से दिस एंगल वुड बी वाई, अगर मैं बोलता हूँ ये एंगल वाई है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 90 माइनस वाई होगा? सिमिलरली अगर मैं, सर 90 माइनस एक्स और 90 माइनस वाई कैसे आए? देखो कैसा है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 है, एक एंगल कुछ एक्स होगा तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। वो समझ 180 नो? यस, समझ आ रहा है भाई? इसका इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। एक 90 है तो बाकी दो तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी सम 90 होगा ना। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा फॉर श्योर। यस उत्कर्ष, पता चल रहा है? यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? नो सर। ठीक है ना। देखो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली लिखवा दूं कैसा होता है, इसके बजाय हम एक एक चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, तो आपको फील आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें एक्चुअली हो रही है, मैथमेटिकली हम हर एक को प्रूव कर रहे हैं। चलो, अब ये y है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब एक और चीज़ मुझे बताओ, देखो आपने क्या करा, अब इसमें देखना कुछ और भी मैं करने वाला हूँ, कुछ और भी करूँगा बहुत अच्छा। देखो हमने क्या किया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। यस, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये वाला जो एंगल है मैं बोल सकता हूँ ये भी वही एंगल होगा। सीपीसीटी रिजल्ट्स क्या होते थे, तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, सिमिलरली ये भी एंगल्स इक्वल हो गए जो मैंने 3 मार्क किया है। यस, देखो यहीं से सीपीसीटी रिजल्ट निकलेगा, एंगल ओएडी इक्वल टू ओएबी, तो ओएडी ओएबी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो x है वो y के बराबर है, ठीक है ना। अब जो आप इसको नामकरण करोगे तो किस तरीके से नामकरण करेंगे आप बताइए। ये आपके पास क्या बन जाएगा, x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे y से रिप्लेस कर दो आप, तो अब आपका फिगर पूरी तरीके से अलग बन गया कुछ। देखो क्या बन गया बताओ, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, एक्स। यस, यस। तो अब देखो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम डिराइव करने वाले हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आप देखो तो ये एंगल x और x है ना, x और x का मतलब क्या है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल एंगल्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डायगोनल x एज द एंगल बाइसेक्टर? भाई डायगोनल ने क्या कर दिया, ये गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ये डायगोनल ने भी क्या कर दिया, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है ना। सो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर, डायगोनल्स ऑफ अ rhombus, diagonals of a rhombus acts as angle bisectors of the opposite angles through which they pass. Is it clear? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको पता चल गई है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर देनी है, ठीक है ना, ध्यान से समझना।
ओके क्या लिखा है, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस एक्ट्स एज एंगल बाइसेक्टर, तो जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी एक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब इससे मुझे क्या पता चला, Yes. मुझे अगर आपने एक एंगल बता दिया, ठीक है ना, जैसे कुछ अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके लिए, आपको अगर बता दिया कि एंगल 30 है, आप रोम्बस का हर एंगल बता पाओगे, ठीक है ना, यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेल ऑल द एंगल्स ऑफ रोम्बस। कैसे, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60, ये भी 60 हो जाएगा, सिमिलरली दिस वुड बी 30 30 and 60. 30 30 and 60 60, 90 90 90 and 90. 90. This is an example that we have taken. Okay, चलिए अब सिक्स्थ एक और प्रॉपर्टी निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट हम अब बात करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस की। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो जब हम रोम्बस की बात करते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ रोम्बस। चलो ABCD मैंने नाम दे दिया इसको, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया है, लेट्स से दे मीट एट अ पॉइंट O, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये बाइसेक्टिंग होता है, ये भी बाइसेक्टिंग होता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ पहले। एरिया ऑफ अपर ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD या ADC बोलो आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या होगा, हाफ बेस क्या है AC या बेस, इसके लिए देखो ये वाला, एंड ये हाइट है OD, हाफ AC इंटू OD हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ AC इंटू OB हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैंने, ये समझ आ गया दोनों चीज जो मैंने लिखा है, इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना, और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा रोम्बस कवर हो जाएगा। यस, ऊपर के ट्रायंगल का एरिया और नीचे के ट्रायंगल के एरिया को अगर मैंने कवर कर लिया पूरा का पूरा, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा पूरा रोम्बस कवर हो जाएगा। कैन आई से दैट? Yes, sir. बोल सकता हूँ ना ऐसा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, ये ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है और नीचे वाला ट्रायंगल लिया हुआ है। सो इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC plus area of triangle ABC is equal to half of AC into OD plus half of AC into OB। अब मैं क्या करता हूँ, हाफ AC कॉमन निकाल लेता हूँ, बचा क्या, OB प्लस OD बचा। अब मुझे एक चीज बताओ, OB प्लस OD क्या है, दिस वाज योर O, so OB प्लस OD इज नथिंग बट BD। कैन आई से दैट? क्या मैं बोल सकता हूँ ये BD के बराबर है? यस। तो यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज AC, डायगोनल 1 का लेंथ, व्हाट इज BD, डायगोनल 2 का लेंथ। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक सेकंड, मुझे लगता है शायद स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो रहा है। बाय हाफ D1 इंटू D2, दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सबको एरिया का फॉर्मूला क्लियर है? यस, पूरा का पूरा मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली जो आपकी स्क्रीन है ना वो अटक अटक के आई थी तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर से बताता हूँ, पूरा फिर से बताता हूँ, नाजरा देखो आप। पहले मैंने क्या किया, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला। यस, ऊपर वाले ट्रायंगल ADC का एरिया है हाफ AC, जो ये बेस लाइन है, AC की लाइन जो बेस है और उसकी हाइट, ठीक है ना। फिर एरिया ऑफ ABC निकाला नीचे वाले ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, ये वाला बेस AC और into ये वाली B2. हाइट। बेटा ये हाइट क्यों बनी पता है आपको, ये हाइट क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री था ना, ये दिस वाज 90, Yes. तो बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लग गया, तो आपके पास ये भी एरिया आ गया। अब मुझे अगर Yes. रोम्बस का एरिया चाहिए तो क्या होगा, दोनों ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया, तो Yes. मैंने हाफ ACOD प्लस हाफ ACOB कर दिया, फिर मैंने Yes. हाफ AC कॉमन निकाल लिया, OB प्लस OD बचा, और OB प्लस OD एक्चुअली BD के बराबर है।
है ना, दो हाफ Yes. थे, OB ऊपर का पार्ट, OD नीचे का पार्ट, Yes. तो ये BD हो गया, तो हाफ ACBD क्या हो जाएगा, हाफ D1 D2, AC एक डायगोनल का लेंथ, BD दूसरे डायगोनल का लेंथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, Yes. ठीक है ना, लिख लो, तो एरिया ऑफ रोम्बस हो गया आपके लिए। चले अब एक क्वेश्चन, अच्छा अब बिफोर आई गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, ये लिख लो बेटा, Yes, sir, written. ठीक है, लिख लिया आपने, ओके नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर फॉर्मूला, अब एक और फॉर्मूला है लास्ट, जिसके बाद रोम्बस को हम कंक्लूड कर पाएंगे, दैट्स द सेवेंथ थिंग। रोम्बस में और क्या होता है बेटा, देखो मैं एक चीज आपको और बताऊं, अगर मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ, इफ आई मेक अ रोम्बस, ABCD, BD और AC को हमने ज्वाइन कर लिया, पॉइंट O पे मिले जाके, अब परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है जब भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो हम जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर 8th ग्रेड, ये क्वाड्रिलेटरल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8th 9th सब जगह यही चलेगा, और जितना मैं अभी बता रहा हूँ ये 9th भी इसमें कवर हो जाता है पूरा, ठीक है, और इसके अंदर एरिया वाला चैप्टर भी कवर हो जाता है, जो कि आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के पार्ट में जो भी क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड एरिया के फॉर्मूलाज है, दैट विल कवर हियर इटसेल्फ, ठीक है ना, उसमें सिर्फ मैं आपको कोन, फिर सिलेंडर, ओके, स्फीयर और ये सारी चीज़ें उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक और चीज़ आप देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, AOB दिख रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AOB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, AOD, सिमिलरली कैन आई से दैट AOB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो जब एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। वेरी गुड, तो हम Pythagoras क्या लगा सकते theorem. हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, Perpendicular plus base is equal to hypotenuse. स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है ना, तो होता क्या है, बेस आपका क्या है इस केसेस में, OA बोल दो आप बेस है, ठीक है ना, OD आप बोल दो आपका दूसरा बेस है, या दूसरी हाइट बोल दो एक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। अब आप मुझे बोलोगे सर आपको कैसे पता AD हाइपोटेनस है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, सो दिस इज योर राइट एंगल नो, सो अपोजिट टू दिस विल बी ऑलवेज हाइपोटेनस, इज इट क्लियर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो विच एवर ट्राइंगल यू वांट, 4 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, आप 4 छोटे ट्राइंगल में जिसमें चाहो उसमें पाइथागोरस लगा सकते Sir, OD will come, not OB square. हो। OD, OB भी लिख सकते हैं, लेकिन OB के लिए फिर आपको नीचे AB लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप OD लिख लो, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, यस, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इफ डायगोनल्स of a parallelogram are of, sorry, of a rhombus, not parallelogram, of a rhombus, the diagonals of a rhombus are of length 12 centimeter and 16 centimeter, find first area of rhombus, second side length of rhombus, area of rhombus and side length of rhombus। पहले सब पता चल रहा है, Yes, sir. अच्छा लग रहा है,
Yes, ये सब sir. स्कूल में तो पढ़ा होगा ना आपने, ये सारा का सारा पढ़ा है ना आपने स्कूल में। Yes, sir. एरिया नीति का आंसर आ गया मेरे पास, यस। अभी स्कूल में क्या चल रहा है आपके? सर स्कूल में अभी अभी ये खत्म हुआ Coordinate. नहीं नहीं Practical. डेटा हैंडलिंग खत्म हुआ। डेटा हैंडलिंग का सामान, ओके। डेटा हैंडलिंग में क्या क्या बता आपको? बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ नहीं सर, लाइन ग्राफ नहीं, डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बार और एक भी ग्राफ, कुछ था। पाई चार्ट और क्या आता है उसमें डेटा हैंडलिंग में? और क्या है? एक मिनट। यस, so let's understand. Vanya, did you get the answer? Yes, sir. The area is 96 centimeters square and the side is 10 centimeters. Yes, so let's give the naming. ABCD नाम दे देता हूँ मैं। डायगोनल मेरे पास 12 और 16 है, यस, ठीक है, 12 आ जाएगा, यस नीति, 6। देखो 12 का मतलब क्या है, एक 6 होगा, ये भी 6 होगा। 16 का मतलब क्या है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, है ना। तब हम क्या बोल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज हाफ d1 d2। हाफ, व्हाट इज डायगोनल 1 का लेंथ? 12। व्हाट इज डायगोनल 2 का लेंथ? 16, 8। सो 12 into 8 is 96 centimeter square. First answer is 96 centimeter square. सेकेंड, आपको बोला है साइड लेंथ ऑफ रोम्बस निकालने के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया आप पाइथागोरस लगा सकते हो ये ट्राइंगल के अंदर। तो पाइथागोरस कैसे लगाओगे आप? लेट्स से ओ है ये, तो ओ ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर, यस। ओ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। ओ डी कितना आ जाएगा? 64। देखो ना, 8 का स्क्वायर 64। हाफ लेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि पूरे डायगोनल का लेंथ 12 है, तो हाफ कितना होगा? 6 होगा। पूरे डायगोनल का लेंथ 16 है, तो हाफ 8 होगा, है ना। AD square. Therefore, I come to know that AD square is 100. What is AD? AD is 10. Yes. AD कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपका AD कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। So side length of rhombus would be 10 centimeter. Clear? Yes. Okay. Sir, we have pictograph, bar graph, double bar graph, then pie chart, chance and probability. अच्छा, probability भी इसमें ही है। ओके ओके, And histogram. हिस्टोग्राम, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे क्या? Let's take down one more question. Find the area of rhombus. Find. अच्छा, आप लोगों के पास मेंसुरेशन का मॉड्यूल है? ये आपके पास है मेंसुरेशन का मॉड्यूल? Algebraic expression है और factorization है। ओके, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप क्या क्या साथ में कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ, जब तक ये क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, one side of which measures 20 centimeter and one diagonal 24 centimeter. तो जब मैं मेंसुरेशन का आपको मॉड्यूल भेजूंगा, तो मेंसुरेशन के मॉड्यूल में आप DPP 1 कर सकते हैं और DPP 2 कर सकते हैं।
Sir, area is 240 centimeters square. यस, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। एरिया कितना आ रहा है 240। सर माई 384 कमिंग। My 240 is coming. अच्छा चलो देख लेते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, फिर कंक्लूड करते हैं। लो तो हमने क्या किया, एक रोम्बस बना लिया पहले। तो रोम्बस का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है जिसकी वन साइड 20 है। तो ये साइड 20 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, आपने डायगनल्स बना लिए और आपको एक डायगनल 24 दिया है। एक डायगनल 24 मतलब उसको वो अगर मैं 12 12 पार्ट में ब्रेक करता हूँ 12 हो जाएगा। हम्म, तो क्या मैं अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये निकाल सकता हूँ, हम्म, तो ये 16 आ जाएगा आपके 16, पास, है ना? यस, तो 16 आ जाएगा आपके पास। कैसे निकाला, पाइथागोरस आप लगा देना ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर। ए बी मेरे लिए 400 हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और ओ ए स्क्वायर मुझे ढूंढना था, तो 400 माइनस 144 that would be 256 and so OA would be 16. yes, OA मेरे पास 16 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये भी मेरे लिए 16 है, ये 12 है मेरे लिए, ठीक है ना? अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ d1 d2 32 into 24 upon 2। 32 into 24/2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो you'll get 190 Sir, by 192 आ जाएगा। 2 times you took। सॉरी 2 बार 2 लगा दिया ना मैंने, गलती हो गई। हाफ ऑफ d1 d2 आ जाएगा सिर्फ बस। तो ये बन जाएगा आपके पास, हाफ गेट्स कैंसिल, दिस विल बी 12, ठीक है ना? तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यस, यही आ रहा है, यस सर, यस। ठीक है ना? तो हाफ, और दूसरा अगर आपको डायगोनल निकालना था तो उसका लेंथ भी आपने 32 निकाल लिया, ठीक है ना? हाँ सर। बस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल बी टेकिंग अप द डिफरेंट फिगर, दैट विल बी रेक्टेंगल एंड देन विल बी टेकिंग अप स्क्वायर एंड देन विल बी टेकिंग अप काइट, ठीक है ना? सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय। बाय बेटा। Yes, sir.